Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Konaxia High Flyers. Friends, in these episodes, we talk to you about emerging companies from emerging sectors. And in this process, we talk to the promoters of such companies, discuss their business model, their growth journey, their future plans. And today, friends, we have got a very interesting company which is going to hit the capital markets very soon. The company's name is Falcon Concepts Limited, and we have the pleasure of having, Mr. Prithvi Seth, who's the whole-time director of the company. Uh, Prithvi ji, thank you very much for sparing your valuable time with us on the show today. I am pretty sure Thank you so much that for in this having me, sir. small Thank you so much. you have a good kind of information about your company. So thank you very much, Thank and you we can so much. begin. Yeah. Yes, sir, So sure. Prithvi ji, yeah. So Prithvi ji, पहला सवाल what I would like to ask you is that if you could tell us what is the business model of our company, and what is the positioning of our company in the domestic market. If you could Okay. share your thoughts. Sure, sir. So my company is Falcon Concepts Limited, as you know the name. So we basically deal in architectural facade activities, where the Okay. work is done to beautification of the exterior of the building. तो हमारा जो जितना भी कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, आपका इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स आता है, तो उसको हम ब्यूटीफाई करते हैं एक्सटीरियर से via installation of glasses, aluminum frames, MS structures, curtain wall glazings, structural glazings and all. Okay. And also we do exports. हम अपना ये बिल्डिंग मटेरियल का एक्सपोर्ट भी करते हैं टू आवर क्लाइंट्स हु आर इन फॉरेन अब्रॉड, मोस्टली इन Okay. वेस्ट अफ्रीका, घाना एंड टोगो. Okay. Okay. And if you Prithvi ji, if we talk about the yeah. positioning of the company, so I would like to say that we have our presence domestically in almost 7 states. So continuing from Haryana, UP, Delhi, Rajasthan, MP, Gujarat, Karnataka. So these are the domestic states that we have our presence in. And abroad and internationally, we have our presence in Ghana and Togo. ओके ओके, नो अंडरस्टूड. पृथ्वी जी, मुझे बताइए, ये फर्स्ट जनरेशन वाली कंपनी है या हैज इट कम फ्रॉम योर फादर और योर सेकंड जनरेशन? तो ये बिजनेस So जर्नी yeah, के बारे में कुछ. yes. So basically, we started this company in 2018. So I started this company with my brother Tribhuvan Seth, who's a BA LLB graduate. I myself am a BA LLB graduate, and my mother Ekta Seth. So before the 2018, my father was also into the same business. So once I completed my graduation and all, then I asked my father that we wanted to take this company on higher heights, and that's when, with his guidance and his experience, we incorporated this company in 2018. And God has been really kind, sir, that we have been working through and through, and we have been seeing growth year by year in our company. ओके ओके, आई थिंक बहुत अच्छा लगा सुनने से. पृथ्वी जी, मुझे बताइए, ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्री पोटेंशियल और ग्रोथ ऑफ द मार्केट यानी फैकेड मार्केट का अगर ग्रोथ देखें, तो इन योर Right. ओपिनियन व्हाट इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर अस, यानी कितना बड़ा मार्केट है अगले 3-5 साल में? बिकॉज आई बिलीव दिस Right. मार्केट इज वेरी मच क्लोजली कनेक्टेड टू द रियल एस्टेट मार्केट. तो रियल एस्टेट It अगर is ग्रो करता है तो ऑब्वियसली फैकेड मार्केट भी ग्रो करता है, तो अपॉर्चुनिटी exactly. कितनी बड़ी है? How are we planning to capitalize on this opportunity? तो सर, यू आर एग्जैक्टली राइट. हमारा जो ये रियल एस्टेट मार्केट से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. आज जिस तरीके से रियल एस्टेट हमारे इंडिया में बढ़ता जा रहा है, और अभी तो मैं आपसे सिर्फ टायर 1 टायर 2 सिटीज की बात करूंगा, टायर 3 टायर 4 तो भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं. अभी तो हम 6-7 स्टेट्स में ही घुसे हैं. एंड अगर मैं आपके साथ मार्केट वैल्यू की बात करूं, तो हमारे इंडिया में फसाड मार्केट, नॉट द रियल एस्टेट, सिर्फ सिर्फ फसाड मार्केट ही आप लगा लो $2.83 billion की इंडस्ट्री है. And with the compound annual growth of around 8 to 10% per year per annum, we expect this industry to reach about a valuation of $6 billion by 2032. तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. हमारा बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टाइम है ये इस टाइम फसाड मार्केट का. रियल एस्टेट इज बूमिंग, तो वी हैव अ वेरी, वी से कि हम बहुत ज्यादा पोटेंशियल देखते हैं इस इंडस्ट्री का ग्रो का. नहीं, बिल्कुल. पृथ्वी जी, अभी मुझे बताइए कि इस मार्केट में अगर मैं आपको पूछूं कि सर लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितनी है, काफी ज्यादा प्लेयर है या सिलेक्टेड पॉकेट्स में, जैसे आप हरियाणा में ज्यादा प्रेजेंट हो, आप 7 स्टेट्स राइट. में प्रेजेंट हो, तो बेसिकली मोटा मोटी इसमें कंपटीशन कितने लेवल का है? आई मीन हर एक को काम मिलता है, मार्केट काफी बड़ा है, या इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट विद फ्यू लार्ज प्लेयर्स? इफ यू कुड प्लीज शेयर योर थॉट्स. सो यस, मैं आपको ये बताऊंगा, ये वैसे तो पहले बहुत अनऑर्गेनाइज मार्केट था अर्लियर.
तो उसमें लाइक हर तरीके के लोग छोटा भी काम कर रहे थे, बड़ा भी काम कर रहे थे। बट अगर मैं अब देखूं तो अब पास्ट ट्रेंड देखूं तो देयर आर ओनली सर्टेन कंपनीज हु आर डूइंग बिग वर्क, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। एंड आई विल बी हैप्पी टू टेल यू दैट वी आर वन ऑफ दोज। एंड हमारा आगे का प्लान भी इसको और आगे ग्रोथ करने का ही है कि हम इस कंपनी को और बड़ा करते चले जाएं। ओके। और इसमें पृथ्वी जी मुझे एक बात बताइए, क्या इंपोर्ट्स हमको फेस करने पड़ते हैं? क्या पूरी तरह से ये डोमेस्टिक मार्केट प्लेयर्स ही कैटर करते हैं, या इसमें कोई इंपोर्ट से भी कोई प्लेयर्स इंडिया में आ चुके हैं जो ये सेगमेंट को कैटर करते हैं? इज इट अ नहीं सर, फुल्ली ये डोमेस्टिक सप्लाई ड्रिवन फुली मार्केट? डोमेस्टिक, फुली अच्छा, डोमेस्टिक फुली मार्केट है सर। डोमेस्टिक, इट्स अ इंपोर्ट फुली नहीं है। डोमेस्टिक मार्केट। अच्छा, अभी प्राइसिंग के बारे में बताइए। जब हम कोई नया प्रोजेक्ट लेते हैं फसाड करने के लिए, तो प्रोजेक्ट का साइज, प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस, कस्टमाइजेशन देख के ही प्राइसिंग होती है, या बेसिकली यू ऑल हैव गॉट सम स्टैंडर्ड पैकेजेस? आप प्राइसिंग कैसे फाइनली कस्टमर को प्रोवाइड करते हो? यानी कौन से प्राइस पे आप ऑप्टिमली बोलते हो कि भाई ये काम हम इतने प्राइस पे आपको एग्जीक्यूट करके देंगे? तो हाउ डज द प्राइसिंग वर्क इन आवर इंडस्ट्री? ओके, तो सर इसमें ऐसा रहता है कि अब आपको पता है हर बिल्डिंग एक नया प्रोजेक्ट है। एंड एवरी न्यू कस्टमर हैज इट्स ओन पॉकेट का वो कि वो उसको कितना अपने आप को स्पेंड करके बजट से आगे जाना है या बजट के अंदर रहना है। वी प्रोवाइड एडिक्वेट सोल्यूशन टू ऑल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ आवर क्लाइंट। अगर आज हमें पता है हमारे क्लाइंट को थोड़ा सा बजटेड भी चलना है, तो हम उसको वैसे सोल्यूशन भी देते हैं। आज हमें पता चलता है कि नहीं, क्लाइंट को पूरा भैया पैसा खर्चने को वो रेडी है एंड ही वांट्स द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो हम उसमें भी प्रॉपर सोल्यूशन देते हैं। बट मैं आपको बिल्कुल। रफली एक आइडिया बताऊं, हम मतलब हर एक साइड का अलग ही कोटेशंस रहता है। बट अगर आपको एक रफ आइडिया बताऊं ऑफ द कॉस्टिंग, तो आप ये लगा लो कि हमारा जो एल्यूमिनियम का पार्ट रहता है दैट इज अबाउट 30%। जो हमारा ओके। ग्लास का पार्ट रहता है दैट इज ऑल्सो अबाउट 30%। हमारा जो लेबर का पार्ट रहता है दैट इज अबाउट 15 to 20%। ओके, एंड समझ हमारा जो हार्डवेयर रहता है दैट इज 10%। एंड सब्सिक्वेंटली जो हमारा प्रॉफिट रहता है वो 10 to 15% रहता है। तो ये थोड़ा गया। हमारा 100% का बाइफिकेशन रहता है। ओके, ओके। नहीं, समझ गया। अच्छा, दूसरी बात बताइए, अभी आपने बोला कि यू ऑल आर अमंग्स द टॉप फसाड प्लेयर्स इन द कंट्री। तो सर, हमारे कोई मार्की कस्टमर जहाँ पे हमने पहले प्रोजेक्ट्स किए हैं, इसके बारे में आप कुछ बता सकोगे हमारे व्यूअर्स के लिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड योर कंपनीज प्रोफाइल एंड बिजनेस इन अ मच बेटर वे? राइट। तो सर हमने, वी वुड बी वेरी प्राउड टू टेल यू दैट हमने हर सेक्टर को केटर करा है यहाँ पे इंडिया के अंदर। वी हैव केटर्ड द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, वी हैव केटर्ड द इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, द एजुकेशन सेक्टर, वी हैव केटर्ड द रियल एस्टेट सेक्टर। तो हमारा जो, अगर मैं आपको थोड़े क्लाइंट्स बताऊं, जैसे कि मैकॉन्स इंफ्रा हो गया, गैलेक्सी मैग्नम हो गया, स्प्लेंडर हो गया, सेंट जेवियर्स हो गया, एशियन हॉस्पिटल हो गया, फोर्टिस हॉस्पिटल हो गया, तो हमने इन सब ब्रांड्स के लिए प्रोजेक्ट्स करे हैं। ओके। और पृथ्वी जी, दूसरी बात बताइए कि नॉर्मली जब हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हमको मिलता है, तो ये फसाड मिलने के बाद नॉर्मली हमारा टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? यानी ये सब कुछ कंप्लीट करके फ्रॉम द टाइम यू गेट द ऑर्डर, डिजाइनिंग, फिर कस्टमर के स्पेसिफिकेशंस और फाइनल डिलीवरी, तो इसमें कितना टाइम एग्जीक्यूशन के लिए लगता है मोटा-मोटी? सर ये भी हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, स्पेसिफाई भी नहीं कर सकते। इसमें ये रहता है कि हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट की वेसिनिटी पे डिपेंड करता है। सो क्या रहता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स का थोड़ा छोटा एरिया रहता है, तो वो 2 ढाई 3 महीने भी कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ बिल्डिंग्स जो काफी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें काफी टाइम लगता है उसको बनने में एंड ऑल होने में, तो फिर उसमें हमारे को 8 महीने साल तक भी लग जाता है। ओके, ओके, वैसे तो बेसिकली बिल्डिंग का कॉन्फ़िगरेशन और साइज़ ऑफ द बिल्डिंग के हिसाब से टाइम आपको लगता है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी बात पृथ्वी जी, अभी मेरे को बताइए कि देखिए, एज़ क्वालिटी सप्लायर ऑफ फसाड सिस्टम्स, व्हाट इज़ सो स्पेशल एंड डिफरेंट फ्रॉम आवर कंपनी? हम कस्टमर्स को कैसे सर्विस करते हैं? हमारी एग्जीक्यूशन अच्छी है, या ऑब्वियसली द काइंड ऑफ डिजाइनिंग व्हिच वी डू। सो व्हाट आर द 2-3 क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स व्हिच एक्चुअली डिफरेंशिएट आवर कंपनी विद अदर कंपनी? क्योंकि मैं पूछना चाहता था कि फाइनेंशियल्स तो सभी को पता है, बट राइट। क्वालिटेटिव टर्म्स में हम अपने आप को कैसे दूसरों से डिफरेंशिएट करते हैं, और कस्टमर्स को कैसे हम इम्प्रेस करते हैं हमारे काम से? तो उसके बारे में कुछ बताइए। यस सर, तो मैं सर पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज की डेट में हमारी जनता भी और लोग भी बहुत क्वालिटी ओरिएंटेड हो ही गए हैं। आज की डेट में आज हर कस्टमर को क्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए। तो मुझे एक चीज तो ये लगती है कि इफ टुडे वी आर नॉट गिविंग एनी क्वालिटी, तो वी कैन नॉट स्टैंड इन द मार्केट ओनली। आज क्वालिटी तो एक राइट। अनसेड एस्पेक्ट हो गया कि अगर आप आज भैया क्वालिटी नहीं दे सकते हो, तो आप मार्केट में स्टैंड ही नहीं कर सकते हो। तो क्वालिटी देना तो 100% है ही है।
बट इसके अलावा आप क्या वैल्यू ब्रिंग कर सकते हो, तो वो वैल्यू हम ब्रिंग करते हैं एक तो अपनी सर्विस में, एक टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स में, एक हमारी ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्किंग में। हम अपने क्लाइंट को बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी वाली वर्किंग के हिसाब से काम करते हैं, उसको रेगुलरली अप टू डेट रखते हैं कि उसका प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है, आगे क्या आने वाला है, आगे क्या होने वाला है, और कब तक क्या कंप्लीशन रहेगा। एंड नॉट ओनली कि जब एक बार हमारा कस्टमर से डीलिंग हो गया, हमने हैंड ओवर कर दिया प्रोजेक्ट, तो हमारा काम हो गया। हम उसके बाद भी ईयर ऑन ईयर अपने उस सेम क्लाइंट के लिए भी वी ऑलवेज स्टैंड देयर कि कल को उसको कोई भी इशू आता है इन द बिल्डिंग, और मे बी उसको कोई नई ब्यूटिफिकेशन करानी है, कुछ चेंजेस भी कराने हैं, तो आप कह सकते हो कि आफ्टर सेल सर्विस, तो एक आफ्टर सेल हाँ, सर्विस की हमारी अप्रोच बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है। सो विद माय टीम ऑफ एक्सपर्ट्स वी मेक श्योर कि अगर हम किसी क्लाइंट से जुड़े हैं तो हम उससे लाइफ टाइम के लिए जुड़ते हैं। हमारा सिर्फ बिल्कुल। यही मतलब नहीं रहता कि प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिया, अपना पैसा लिया और हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने बोला कि बिल्डिंग बनाने के बाद भी, फसाड बनाने के बाद भी अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है या कोई मॉडिफिकेशन आता है, तो यू आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट द कस्टमर, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ये समझ गया। इनफैक्ट पृथ्वी जी, अभी थोड़ा-सा फाइनेंशियल्स के बारे में बताइए। हमने देखा था कि सर FY 23 में अपना प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ा था, लेकिन रेवेन्यू राइट, मेरे ख्याल से थोड़ा-सा कम हो गया। तो इसका मेन रीज़न क्या था? रेवेन्यू कम होने का कारण बताइए सर। मैं आपको बताता हूँ सर। बेसिकली क्या होता, हमारा एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर था जो बेसिकली फाइनलाइज नहीं हो पाया। अगर आप देखेंगे जिस ईयर में हमने 18 सीआर करा है, तो उसमें हमने 5 सीआर का एक्सपोर्ट किया है। तो ओके, इस उसके नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ कि थोड़े से डिसीजन पेंडिंग रह गए हमारे क्लाइंट के एंड पे, जिस वजह से हमारा वो एक्सपोर्ट इनिशिएट नहीं हो पाया। ड्यू टू दैट ओके, रीजन हमारा वो थोड़ा सा ड्रॉप रहा। एंड हमारा, अगर मैं ओके, बोलूं प्रॉफिट क्यों इंक्रीज हुआ, दैट वाज बिकॉज कि पोस्ट कोविड हमारे जो रॉ मटेरियल प्राइसेस, आपको पता है मार्केट बहुत अनसर्टेन हो गया था, तो रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है वो अराउंड 20-30% से स्लैश ऑफ हो गए थे। तो वो 20-30% जो था हमारे प्रॉफिट के अंदर आ गया, क्योंकि रॉ मटेरियल अच्छा। सस्ते हो गए, रेट्स हमारे सेम थे। ओके, ओके। नहीं यार, दूसरी बात मैं देख रहा था कि सर हमारा जो अक्टूबर का परफॉर्मेंस जो प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, वहाँ पे भी अच्छी बढ़त हमने देखी है, रेवेन्यू बढ़ गया है, प्रॉफिट एग्जैक्टली भी बढ़ गया है। तो सर अभी एग्जैक्टली। इस साल विदाउट पुटिंग अ नंबर, पृथ्वी जी अगर आप हमको बता दें कि ओवरऑल अभी तो ऑलरेडी मार्च 24 तो खत्म हो चुका है टेक्निकली। तो मोटा-मोटी राइट। सर आपको क्या लगता है आने वाला साल भी अच्छा रहने की अपेक्षा है एट लीस्ट इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी? इसका पिक्चर हंड्रेड आप कैसे परसेंट देख रहे हैं? 100% सर। मेरे को हमारा क्या है कि अब विद गॉड्स ग्रेस वी आर बैगिंग मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स। हम और से ज्यादा प्रोजेक्ट में बिड कर पा रहे हैं। दैट इज द रीजन कि हमारा परफॉर्मेंस में आप देखोगे कि एकदम अपसर्ज आया है, कि हमने 7 मंथ्स के अंदर ही पूरे लास्ट ईयर का पूरा रेवेन्यू कर लिया है। तो बिल्कुल। अब आप ये कह सकते हो कि हम हमारे प्रोजेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, मोर एंड मोर क्लाइंट्स आर कमिंग इन, हमारे पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं अपनी बिल्डिंग को लेकर। तो उस वे में यस, वी आर डेफिनेटली ग्रोइंग ऑन अ वेरी रैपिड स्पीड, एंड आई होप एक ये ऐसे ही चलता रहे। बढ़िया। नहीं, आई थिंक वेरी गुड टू हियर पृथ्वी जी। पृथ्वी जी, मुझे मुझे बोलिए अभी फिलहाल एज ऑन डेट जो आपका रिपोर्टेड अक्टूबर का नंबर है, अपनी कंपनी की मोटा-मोटी ऑर्डर बुक कितनी होगी? क्योंकि मैं जानता हूँ ये बिज़नेस ऑर्डर बुक ड्रिवन होता है। तो मोटा-मोटी एग्जैक्टली। जो एक्जिस्टिंग है, जो आपके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स है, उसके बारे में सर कुछ बताइए? सो सर अभी मेरी जो ऑर्डर बुक होगी रफली अबाउट अप्रोक्सीमेटली 50 सीआर की होगी, एंड इट्स अ अच्छा, ग्रोइंग ऑर्डर बुक ओनली। बट अराउंड ओके, 50 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हमारे पास अभी इन हैंड है जो चल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा पृथ्वी जी, अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हम अभी आईपीओ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आईपीओ बहुत जल्दी खुलने वाला है। तो सर इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि कितना बड़ा इश्यू है, किस ऑब्जेक्टिव से हम ये पैसा उठा रहे हैं? तो इफ यू कैन शेयर सम थॉट्स ऑन दैट, दैट विल हेल्प ऑल आवर व्यूअर्स। सो द मेन ऑब्जेक्टिव टू कम विद एन आईपीओ इज कि हमारे को बेसिकली आईपीओ के आने के बाद एक ब्रांड क्रेडिबिलिटी और एक रिलायबिलिटी फ्रॉम अ कस्टमर्स एंड बहुत ज्यादा मिल जाएगी। हमारी जो मार्केट हाँ, वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, एंड इट विल ऑल्सो बिल्कुल। हेल्प अस इन गेटिंग मोर प्रोजेक्ट्स, बिगर प्रोजेक्ट्स। उसका रीजन ये है कि अगर सर आज आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं और आपको अगर आज 5 लोगों ने कोटेशन दिया है, आप 5 लोगों से सर्विस लेने का सोच रहे हैं कि आई हैव टू चूज द बेस्ट वन, तो जो कंपनी लिस्टेड होगी, मुझे लगता है कि आप उसको काम देने के लिए ज्यादा इंक्लाइन रहेंगे, बिकॉज आपको एक ट्रस्ट रहेगा कि नहीं यार ये कंप्लायंस करी हुई कंपनी है, और अगर ये लिस्टेड बिल्कुल, है तो इसके रेगुलेशंस हाँ, पूरे हो रखे हैं, तो ये कंपनी पे बिल्कुल, आपको ट्रस्ट ज्यादा रहेगा। सो दैट इज द बिल्कुल। मेन रीजन। उसके अलावा क्या है कि ओके, हमारे को सर अब ना बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर घुसना है। आज क्या है कि हमारे अगर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 4 सीआर की वेसिनिटी से लेकर 15-16 सीआर तक के हैं।
बट अब इस गेम को हमारे को ऊपर लेके जाना है, तो अगर हमारे को बड़े प्रोजेक्ट्स में जाना होता है तो वी नीड अ वर्किंग कैपिटल। आज क्या होता है हाँ, कि कोई प्रोजेक्ट जो होता है उसके अराउंड 20 to 25% का जो अमाउंट रहता है वो हमारे को एज अ वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। तो आज अगर बिल्कुल हम बड़े प्रोजेक्ट्स को बिड करते हैं तो हम वहां पे चूक जाते हैं कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज रहती है। तो वहां पे हम हाथ नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि हमारे को अपनी कंपनी को खराब तो करना नहीं है कि अपने जितने हमारे बिल्कुल मतलब चादर नहीं उससे ज्यादा पैर फैला लिए। तो इसलिए हम उसी बिल्कुल सेक्टर में काम करते हैं जिसको हम केटर कर पाते हैं। अब क्या है कि हमारे को अपनी कंपनी की जो कह लो कि प्रोजेक्ट की जो वेसिनिटी है वो बढ़ानी है, तो उसके लिए वर्किंग बिल्कुल कैपिटल चाहिए। और सेकेंडली हमारे को बेसिकली, अब आई डोंट नो अगर आपको पता है नहीं पता, आपने देखा होगा जब बिल्डिंग्स बन रही होती है तो एक स्कैफ फोल्डिंग का स्ट्रक्चर लगा रहता है आउटसाइड में, जिसके ऊपर लेबर खड़े होकर हाँ, हाइट पे काम करती है। तो अभी एग्जैक्टली। क्या, अभी हम थर्ड पार्टी सोर्स करते हैं उसको। बट अच्छा, अब क्या है कि उसको हम वो उसको इन हाउस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आज उसको हम इन हाउस कर लेंगे तो वो हमारी कॉस्ट को काफी बचाएगा, हमारी टाइमली डिलीवरी में हेल्प करेगा, और जो कॉस्ट हमारी बचेगी वो इवेंचुअली हमारे प्रॉफिट में ही इंक्रीज होगी। सो दैट इज बिल्कुल द मेन एजेंडा फॉर द ओके। आईपीओ। तो मोटा मोटी पृथ्वी जी, हम कितना पैसा उठा रहे हैं और ये कैपिटल मार्केट के आईपीओ से अभी फिलहाल? रफली 12.9 सीआर। अच्छा, 12.9 सीआर करोड़, और ज्यादातर वर्किंग कैपिटल के लिए है, जो आपका वर्किंग हाँ, कैपिटल जो आपके नए मेजरली, प्रोजेक्ट्स के लिए लगे। हाँ, अराउंड 6 करोड़ तो हमारा वर्किंग कैपिटल के लिए ही है, और हाँ, 2.5 करोड़ से 3 करोड़ हमारा जो है आपका ये स्कैफोल्डिंग के लिए है, जो मैं आपको बताया कि हमने बराबर। खरीदनी है for अपना स्ट्रक्चर के हाँ, लिए। बिल्कुल और उसके अलावा बिल्कुल हमारा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए है। ठीक। समझा, समझ गया मैं। पृथ्वी जी, अभी वर्किंग कैपिटल की बात हुई है तो मेरे को बताइए कि सर, नॉर्मली हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल जब तक हम काम करते हैं, कस्टमर हमको पैसा देता है, कितना लंबा वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है? क्योंकि एक पॉइंट जो मैंने आपके प्रोस्पेक्टस में देखी कि हमारा काफी पैसा इन्वेंट्री और डेटर्स में अटका हुआ होता है, तो वहां से ज्यादा पैसा हमको लगता है। तो ये क्या यस इंडस्ट्री का ट्रेंड है, या हमारे लिए थोड़ा सा ऊपरी लेवल का है? तो इसके बारे में बताइए सर प्लीज। सर, ये इंडस्ट्री का ट्रेंड ही होता है बेसिकली। जब हमारे को प्रोजेक्ट मिलता है तो पहले तो हमारे को इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है मटेरियल को प्रोक्योर करके साइट पे डलवाने के लिए। सो वंस एक बारी जब हमारा मटेरियल पहुंचता है, दैट्स व्हेन हमारा पार्ट पेमेंट रिलीज होता है। फिर उसके बाद हमारे को दोबारा से उसकी फ्रेमिंग लेबर डिप्लॉय करनी पड़ती है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स डिप्लॉय करने पड़ते हैं कि वो जो मटेरियल आया है उसको फैब्रिकेट करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए। तो वहां पे हमारे को फिर पैसा लगाना पड़ता है। फिर बाय द टाइम जब फ्रेमिंग हो जाती है तब हमारी हाँ, पार्ट पेमेंट कस्टमर से रिलीज होती है। फिर उसके बाद ग्लास का पार्ट आ जाता है, कि फिर उसके बाद हाँ, हमारे को ग्लास उठाना पड़ता है और ग्लास साइट पे पहुंचाना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे को पैसा लगाना पड़ता है। जब ग्लास बिल्कुल साइट पे पहुंच जाता है तब हमारे को थोड़ी सी पेमेंट रिलीज हो जाती है, पार्ट पेमेंट। फिर उसके बाद बिल्कुल फाइनल इंस्टॉलेशन और हमारे को डिलीवरी हैंड ओवर करने के बाद फाइनल पेमेंट रिलीज होती है। सो द ओके होल प्रोसेस इज, आप कह लो कि ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। टाइम टू टाइम जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, कि हम जैसे हाँ, कंप्लीशन परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, वैसे हमारे को पार्ट हाँ, पार्ट पेमेंट होती रहती है। ओके ओके, समझ गया। बट बट बिफोर मोटा मोटी पेमेंट्स मैं हमारे को ये पैसा लगाना तो पड़ता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल इज रफली बिटवीन 90 टू 100 डेज, मोटा मोटी हम यस, समझ सकते आई हैं। वुड से दैट, यस यस यस। ओके, ठीक है। आई थिंक पृथ्वी जी, लास्ट सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सारे प्रमोटर्स को पूछते हैं। सर, आपने आपके एफर्ट से, आपकी मदर और आपके भाई के एफर्ट से कंपनी तो खड़ी कर दी है। मेरे को बताइए सर, कोविड को छोड़ा तो हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? आई मीन, हाउ डू यू विजुअलाइज व्हाट इज द मेन रिस्क फॉर आवर बिजनेस? क्योंकि सर, हर धंधे में रिस्क तो होता ही है, तो आपने ये बिल्कुल रिस्क है। कैसे मैनेज किया वो भी जरा बताइए, सो दैट ऑल ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड योर कंपनीज थॉट प्रोसेस बेटर। राइट। तो सर हमारी जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है, सो वी माय ब्रदर एंड माय मदर एकता सेठ, तो हम बहुत क्लोजली काम करते हैं अपनी टीम के साथ। वी हैव रेगुलर मीटिंग्स, वीकली मीटिंग्स, मतलब वीक में दो दो तीन तीन मीटिंग्स करते हैं। एंड हम ट्राई ये करते हैं कि हमारा रिस्क फैक्टर जितना कम से कम हो सके, इन टर्म्स ऑफ हमारे को जहाँ पे लॉसेस ना हो। उसके अलावा आई वुड से द मेजर रिस्क फैक्टर जो हमारे को लगता है वो सिर्फ एक ही है, कि जब आप देखोगे दिल्ली में पॉल्यूशन के टाइम पे कंस्ट्रक्शन पे बैन लग जाता है। दैट इज द हाँ, ओनली रिस्क फैक्टर दैट आई बिलीव, जहां पे हमारा काम हमारे हाथ में नहीं रहता, कि स्लो हो जाता है, कि गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन बिल्कुल। पे बैन लगा दिया, देयर इज नथिंग वी कैन डू इन इट। तो ये जो दिवाली के बाद का टाइम होता है, नवंबर दिसंबर का टाइम, जब ये ऑन ऑफ हमारे हाँ, कंस्ट्रक्शन पे बैन चल रहे होते हैं, इवन गाड़ियों पे भी आपको पता है वो ऑड इवन का सिस्टम आ जाता है। हाँ, तो वो कंस्ट्रक्शन बैन इज द ओनली टाइम, वो 1 2 3 महीने का पीरियड, जहां पे हमारे को थोड़ा वो रिस्की लगता है कि हमारा टाइम डिले हो रहा है, पैसा ज्यादा लग रहा है।
टीम्स भी हैं बिल्कुल। रेडी बट काम नहीं हो पा रहा है। सो दैट इज द ओनली रिस्क फैक्टर। पोस्ट दैट मुझे नहीं लगता कि आने वाले अभी इस इंडस्ट्री में और कोई रिस्क फैक्टर है। अगर आप एथिकली काम कर रहे हो एंड आपका इंटेंशन इज राइट एंड आप कस्टमर को वो ब्रांड वैल्यू दे रहे हो, उसके पैसों की वैल्यू दे रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकता ग्रोथ से। नहीं, बिल्कुल, बहुत सही बोला। लेकिन एक बात जो मुझे आपसे क्लियरली पूछनी थी, आपने बोला एग्ज़ीक्यूशन, तो कैन एग्ज़ीक्यूशन बी अ मेजर रिस्क? मान के चलिए कि प्रोजेक्ट अगर टाइम पे होता है तो बढ़िया, लेकिन वहाँ पे अगर कोई डिले हो गया कोई कस्टमर के लिए, तो वो बड़ा-सा रिस्क फैक्टर हो या सकता वो है। भी इज़ रिस्क, इट यस यस, वो भी एक रिस्क रह सकता है। उसका रीजन ये भी है कि सर जैसे आज एक बिल्डिंग बनती है, तो एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता है। भैया प्लम्बिंग का भी हाँ, कोई बिल्कुल, है, सिविल का भी कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई इलेक्ट्रिकल का भी है। तो एज अ फसाड आज हमारा सिविल कॉन्ट्रैक्टर पे बहुत डिपेंडेंसी रहता है कि आज जब बिल्कुल, सिविल कॉन्ट्रैक्टर अपना काम पूरा करेगा तभी हमारी स्टेज आएगी। आज बिल्कुल, अगर बिल्कुल। सिविल कॉन्ट्रैक्टर अपने कुछ काम में डिलेस कर देता है, तो वो लॉस हाँ, हमारे कस्टमर को भी होता है क्योंकि टाइम निकलता जा बिल्कुल, रहा है, एंड वो लॉस हमारे को बिल्कुल। भी होता है कि हम एक प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं जहाँ पे किसी और सब कॉन्ट्रैक्टर ढंग से काम नहीं कर पा रहा और हमारा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहा, हमारे बिल्स नहीं रेस हो पा रहे। तो वो भी एक रिस्क फैक्टर बिल्कुल रहता है। आपने एकदम ठीक बोला है। आई थिंक राइटली राइटली पॉइंटेड आउट बाय यू। एनीवे पृथ्वी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने को। प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेस फॉर यू, योर एंटायर मैनेजमेंट टीम, और सर आपके पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत सक्सेस। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच सर, बेस्ट ऑफ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।